जैसा कि आप सब जानते हैं, एनबीटी का वर्ड बुक फेयर आज लास्ट डे है 18 फेब और लकीली बहुत अच्छा टाइम मिला है हमें एनबीटी की तरफ से लास्ट स्लॉट लास्ट डे हाँ बुक लॉन्च के लिए। थैंक यू एनबीटी। और 50 मिनट्स का स्लॉट है हमारे पास सिर्फ, और उसी में हमें सब कुछ कवर अप करना है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सबसे पहले अपने गेस्ट ऑफ ऑनर्स जो हैं उनको इनवाइट करूंगी। मिस्टर केसी वर्मा जी, प्लीज़ कम ऑन स्टेज। प्लीज़ क्लैप करके इनका स्वागत कीजिए। सुरेंद्र जी प्लीज़ आके सर को ऑनर कीजिए। तालियां बजाइए, इतनी सारी भीड़ है, तालियां दूर तक जानी चाहिए बिल्कुल। अब मैं इनवाइट करूंगी स्मिता कौशिक जी को। स्मिता जी ये रोहिणी से काउंसलर हैं, बीजेपी से काउंसलर हैं, बहुत जुझारू नेता हैं, बहुत मेहनत करती हैं और अपने एरिया में काफ़ी इनका नाम अब तक हो चुका है, बहुत काम किया इन्होंने। आरती, तालियां बजा के इनका स्वागत कीजिए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मीनाक्षी जी, मीनाक्षी वर्मा जी, आभा प्लीज। आभा जी आप मीनाक्षी जी का स्वागत कीजिए। तालियां बजा के इनका भी स्वागत कीजिए। अब मैं इनवाइट करूंगी प्रोफेसर राजेश मोहन जी को, जो फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ शिवाजी कॉलेज एंड एआरएसटी कॉलेज रह चुके हैं। प्लीज़ राजेश जी। सुरेंद्र जी आप स्वागत कीजिए इनका। वो तो ठीक है लेकिन सामने नहीं आ रहा, वेलकम दे सबको सामने खड़ा होना, बैठ गए अब टाइम रुको, अब नाम अनाउंस कीजिए वो आ जाएंगे। तो आज के प्रोग्राम में जो बुक्स लॉन्च होनी है वो हम कमलेश बजाज जी की बुक है डिस्कवरी इंडिया थ्रू द भारतीय लेंस। तो अभी हम एक एक करके जिस तरीके से बुक लॉन्च इवेंट शुरू कर रहे हैं हम, कमलेश जी सबसे पहले आप आइए। सर खड़े होके प्लीज़ कमलेश जी की बुक अनकवर कीजिए।
बहुत अच्छी बुक लिखी है इन्होंने, डिस्कवरी इंडिया थ्रू द भारतीय लेंस। सारा प्रोग्राम खराब हो जाएगा। कमलेश जी, मैं चाहूँगी कि आप अपनी बुक के बारे में कुछ अपना इंट्रो और कुछ अपनी बुक के बारे में, आपने काफ़ी रिसर्च किया है इस बुक पर और बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमने इस बुक फेयर के लिए सिर्फ ये बुक की बहुत जल्दी जल्दी करनी पड़ी, तो थोड़ा सा इस पर आप अपने जो भी कहना चाहें हमारे ऑडियंस को प्लीज़ बताइए। Hello. First of all, yeah. Many thanks to Prakhar Gunj for arranging the book launch, and also grateful to my friend Mr. K.C. Verma to moderate this session, and the Rohini counselor, and along with Rajesh Mohan and Meenakshi Jain. And all of you have come for this book launch. Very warm welcome to you. So I think since the time is small, I will try and take about 7-8 minutes. And the basic theme which I want to cover is, people must be wondering, why did I choose this title? That is, why history through the Bharatiya lens. It is because when I was reading the Discovery of India, written by Jawaharlal Nehru, I was intrigued by his phrase, which was recorded in the book, which says that he was approaching the history through a Western lens, more like a Westerner would look at India. And his specific phrase was that he was, quote, full of dislike for the present as well as for many of the relics of the past that I saw. And then he goes on to say that he wanted to, again, quote, to scrap much of our past heritage. There's a great deal that had to be scrapped, and it must be scrapped. So I was wondering, why did he say this? Why the Western lens, and what was the Western lens? So I set on a path of my own discovery to understand what was the Western lens. And I'm sure all of us have loosely heard about the Aryan invasion theory, or the colonial narrative, which is built on the Aryan invasion theory. And Nehru talks about it. Nehru does accept that there was a challenge posed by the Indus Valley civilization, discovery of Harappa and Mohenjo-daro, and in fact he visited himself in 1931 and 36. And he says that there was continuity of the Hindu culture right from those days to the present. So this continuity is something which was challenging the Aryan invasion theory, but he persisted with it. So this Western lens, who created it? What actually happened? The reasons can be traced back to the English education system which the British introduced. And of course, Macaulay is the famous author of that 1835 Militant Education, which said that we must teach the natives through the English education system and not through Sanskrit and Persian. And this is the only way they will understand and learn our culture better. And to nail it, the coffin really, he decided to look at the Rig Veda more closely, which was the fount or the fountainhead of the Hindu religion. So for this purpose, he went to Oxford and located Max Muller. Max Muller essentially was at that time a novice with very little understanding of Sanskrit. He had just attended a few lectures of Eugene Berkhoff in Paris and a few other courses, small courses he had taken in Germany. So he had little knowledge of Sanskrit. But the objective which was set before him by Macaulay was that first was to highlight the social evils, superstitions, polytheism, idol worship in Hinduism, to let the young man feel inferior to the British with their modern Christianity.
science and modernity which they were propagating, but Christianity was both in the background as well as in the front ground. And second was that the compilation of the Rig Veda and its translation to English would help the missionaries understand Rig Veda better and to counter the Indian Brahmins on their own turf in India in debates. So this is something which he set the objective for Max Muller, and he had the East India Company hire Max Muller and pay for it. So he was on the job for the rest of his life from 1947 onwards to the time he died at the end of the century, that is 1899. But to Macaulay, there's one more thing to credit, that is the Indian Penal Code. So I will not say much about it. I have a top cop sitting here. But this penal code we have only recently changed. This is only last month, yet to be implemented. That is the penal code for governing an alien people. That is the colonized people, as opposed to justice system for the people. So I will not touch upon it. But essentially to say that Macaulay laid the foundations of the education system. And I missed that point where he said that we should have people brown in color but English in thinking. So that everybody knows, but there's much more to it that is recorded. And I've tried to capture that in a chapter devoted only to Lord Macaulay. So Max Muller did not let the colonial masters, so to say, he did not let them down. His books, and he became an authority on the Rig Veda. And he said that, in fact, he had the audacity to say that nobody in India knows Rig Veda as he knows. And that they had discovered Rig Veda for the Indian people. That the system here was that it was in the Brahmanical monasteries and gurukuls that everybody knew, or they taught from generation to generation. But then this was first time textualized as in the tradition of King James Bible, which was distributed to the masses. So this is what they tried to do. And for the special service, you'll be surprised that the British king at that time recognized that his service was much more than that of a regiment which was out to win wars. So this was the colonization of the mind, which was much more than what you would do in wars to capture small territories. Now, this theory of Aryan invasion theory, as well as the way the Vedas were interpreted, this was contested by our own scholars. Maharshi Dayanand, who founded the Arya Samaj, Swami Vivekanand, Sri Aurobindo Ghosh. So right from the beginning of early 19th century, right up to 20th century. So there were much discussions and much books which came out. And they pointed out also the basic error in why the translations were carried out in this manner. That was to introduce mythology in Rig Veda where there was none. It is the way that the nouns were taken as proper nouns in place of common nouns. And then by taking common nouns as proper nouns, so they had brought in mythology. In explanation of every hymn or every verse, this is the approach they took. And Sri Aurobindo also contested it deeply. In fact, he went to the extent of saying in his book, Secret of Vedas, published in 1915, that the Aryans and the Vedians, they were a homogeneous race and part of the same one race. It is not that Aryan race came from the outside. But basic point was that the Hindu voices were ignored and suppressed by the colonial narrative, because a specific narrative had to be carried out, although Indus Valley civilization posed many challenges and our own scholars presented many different ways of looking at it. Then I have tried to look at another period, which is the way history was divided into three parts. We read about history as ancient history, then Mughal history, and then the British period. So British period is only 190 years, and the ancient period is so long, running from 10,000 years right up to the time when the Muslims started coming. And you'll be surprised the Mughal period was only 130 years when Akbar actually captured Bengal.
and then when Aurangzeb died in 1707. And we are taught that the Mughal period is as great, as big as the ancient history or the Vedic civilization of India. So these are some of the points which I have tried to challenge and present the different viewpoint. But interesting point is Nehru's complete silence on Macaulay in the book. We probably would expect that he will write about Macaulay changing the education system, but there's just one single sentence which he says, that English education system was adopted by this particular governor who was Governor General who was governing India. That's all. He makes no comment at all. While Max Muller brought about earth-shaking changes in the country and the colonization which he carried out of the mind, which is still persisting. We still feel inferior about our own culture, and we don't even feel angry about it, we just accept it. It is things which are happening recently. It is said to be revivalism, but then it is something which has been the underlying, I should say, underlying phase of the whole country, or the underlying facet. So, interesting things are, if I take 2-3 more minutes, the Aryan race theory, again propagated by, first started by scholars who discovered Sanskrit in 1780s, and Max Muller carried it further. But the interesting thing is, towards the end of his life, he retracted the Aryan race theory. And he retracted the age which is given to Rig Veda as 1500 BC. And he said that there's no man on earth who can fix the age of Rig Veda, or also that the Aryan race, the common beehive from where the Aryans emigrated to different parts, could never be located. And he went on to say that English was a descendant of Sanskrit language. And in many ways, the entire civilization was sought to be owned by the colonial narrative, was that their governance would be easier with the colonization of mind and so on. So the primitive civilization which they try to project is something which I have tried to tackle in this, and dug out many of their own British archives about what was the Vedic civilization. Like there's a Bal Gangadhar Tilak's paper in 1883. It's a book about how the way times when Brahmins were created, or Rig Veda specific Aitreya Brahmana and others, they were created. There were positions which were given, astronomical positions of nakshatras and other asterisms. So one could trace back by looking at physics only, and get back to the time when this would have been created. And also, Professor John Playfair of Edinburgh University, he wrote a paper in 1789 saying that the Vedic civilization went back to 3102 BC. That is the planetary positions given for Kali Yuga were actual positions which our astronomers or Brahmins at that time would have actually observed. So that primitive civilization tag which is there is something which I have tried to challenge here, and quoting from their own authors, their own people, their own scholars, and of course our own native scholars. So there's much more to it, but I think I will stop at that unless you want me to continue. I have much more really to talk about. Yeah. Thank you. थैंक यू कमलेश जी. एंड वर्मा सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि कमलेश जी को उनका लिटरेरी वर्क के लिए प्लीज़ ऑनर कीजिए. दिस इज़ फॉर कमलेश जी. सर ये शील्ड भी है. प्लीज क्लैप कीजिए. महेंद्र वशिष्ठ जी, इन्होंने इनकी बुक है जो लॉन्च हो रही है, भगवानों का रहस्य. अब भगवानों का रहस्य महेंद्र जी ने कैसे खोजा वो तो यही बता पाएंगे. सर आप बैठिए. सर महेंद्र जी की बुक भी अनकवर कीजिए प्लीज़.
तो बुक का नाम है भगवानों का रहस्य। हम लोग नहीं समझ सके कि महेंद्र जी ने भगवानों का रहस्य कैसे खोजा है। तो महेंद्र जी, टाइम कम है, कम शब्दों में प्लीज़ आप पोडियम पे जाकर अपनी बुक के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने कौन से रहस्य खोजे हैं इसमें, जिससे औरों को भी भगवान मिल जाए इस धरती पर रहते हुए। हाँ बिल्कुल, 2 शब्द में ही ख़त्म कीजिए, टाइम हमारे पास सिर्फ 50 मिनट्स हैं। आप सभी जानते हैं, हजारों साल से पृथ्वी के सभी मानव भगवानों को खोज रहे हैं, लेकिन कभी किसी को भगवान मिले नहीं। यह पुस्तक भगवानों से मिलवा देती है। इस पुस्तक में पहली बार भगवानों को परिभाषित किया गया है। महाईश्वर कौन हैं, कैसे हैं, कहाँ हैं। ईश्वर कौन है, कैसे हैं, कहाँ हैं। देवता कौन हैं, देवी कौन हैं और वे कहाँ हैं, वे क्या करते हैं। और भगवान कौन हैं, वे इस पृथ्वी पर क्यों नहीं हैं। और वे हमारे पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वे कहाँ हैं। हम कौन हैं और हम पृथ्वी पर क्यों हैं। यह मेरे कहने का उद्देश्य ये है, पृथ्वी तो किसी मानव को जन्म देती नहीं, ना ही कोई मछली बंदर मानव को जन्म देता। तो फिर हम कहाँ से आए, कौन हमें पृथ्वी पर लेके आया है और क्यों लेके आया और वापस कब लेके जाएगा। ऐसे ही सैकड़ों सवालों के जवाब इस पुस्तक में आपको मिलेंगे। और यह पुस्तक बताती है पृथ्वी पर भगवानों के अलावा और भी अनेक शक्तियां हैं जो मानव जीवन को प्रभावित करती हैं, किस प्रकार से प्रभावित करती हैं और उनसे बचने के क्या क्या समाधान हैं। यह पुस्तक पृथ्वी के हर मानव के लिए पढ़नी ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म और किसी भी देश का हो। यह पुस्तक गारंटी देती है इस पुस्तक को पढ़ने वाले का जीवन सुकून भरा हो जाएगा। धन्यवाद जी। थैंक यू महेंद्र जी। वर्मा सर, आप महेंद्र जी को भी उनके साहित्यिक कार्य के लिए ऑनर कीजिए प्लीज़। जब इतनी जनता बैठी है तो तालियां तो सुनाई देनी चाहिए ना। कल्पना श्रीवास्तव जी ऑथर हैं आईबी बोर्ड की रेफरेंस बुक प्रांजल की, और बहुत इन्होंने मेहनत की है इस बुक पर। और मैं कहूँगी कि ये बुक सिर्फ इंडिया के आईबी स्कूल्स में नहीं, इंडिया से बाहर भी कंट्रीज़ में आईबी स्कूल में इनकी बुक गई है और काफ़ी फेम मिला इनकी बुक को। प्रांजल स्मिता जी जो काउंसलर हैं रोहिणी से अनकवर करेंगी इनकी बुक को। तालियां बजाए किसका भी स्वागत कीजिए कल्पना जी का। एकेडमिक बुक है और कई स्कूलों में लगी हुई है। तकरीबन भारत में ही मेरे ख्याल से 20 से 25 आईबी बोर्ड के स्कूलों में इनकी बुक लगी हुई है। और कल्पना जी कुछ अपनी बुक के बारे में 2 शब्द बोलिए। नमस्कार, मैं कल्पना श्रीवास्तव मुंबई से। आईबी करिकुलम की ये जो बुक है प्रांजल, ये 9th और 10th ग्रेड को हिंदी विषय के बारे में जानकारी देती है।
और मैं प्रांजल की लेखिका की तरफ से आप सभी को बहुत धन्यवाद और बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि यह किताब जो है भारत के 25 स्कूलों में और ये सिंगापुर और दुबई के एक एक स्कूल में एज अ रिसोर्स बुक लगाई गई है, जहाँ पे बच्चे IB करिकुलम के बच्चे हिंदी सीख पाते हैं। अभी कई लेखनी है बाकी, अभी कई इम्तिहान है बाकी, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो पूरा आसमान है बाकी, अभी तो पूरा आसमान है बाकी। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सभी का आशीर्वाद अपनी आगामी बुक के लिए चाहूँगी। और मैं एक्चुअली हम लोग जो है सिर्फ लेखनी से ज्ञान को नहीं बुनते हैं, बल्कि अपने सपनों को बुनते हैं। और इसी सपनों को उड़ान देने के लिए हमारे पास जो प्रखर गूंज है वो हमको एक नई उड़ान, एक नया आसमान देता है। उसके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच कल्पना जी। और मैं धन्यवाद करती हूँ नीलू सिन्हा मैम का, जिनके प्रोत्साहन के बिना शायद उन्हें एज अ पेरेंट की तरह काम किया है और हम लोग को यहाँ तक पहुँचाया है। आपकी मेहनत है सिर्फ। और कहते हैं ये जो IB करिकुलम है ये जिनेवा के द्वारा संचालित किया जाता है, जहाँ पर हिंदी बच्चों को बहुत कम आती है, तो हिंदी को सरल तरीके से कैसे हिंदी को हम बहुत ही हंसते गाते पढ़ सकते हैं, ये इस बुक में दिखाया गया है। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू कल्पना जी। एक और हमारे ऑथर थी जिनकी आज बुक लॉन्च होनी थी, वो एक ये फार्मर्स की वजह से जो दिल्ली में फेंसिंग हो गई है बॉर्डर्स पर, रुचि सिंह जी वो आ नहीं पाई हैं, तो उनकी बुक थी कॉल ऑफ द जंगल। तो मैं जस्ट उनकी बुक को यहाँ पर स्मिता जी आपसे रिक्वेस्ट करूँगी अनकवर कीजिए, ताकि वो नहीं आ पाई हैं बट उनके पास उनकी फ़ोटोज़ पहुँच जाए कि उनकी बुक भी इस मंच पर लॉन्च की गई है। IFS ऑफिसर की जर्नी पर आधारित है ये बुक और उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं इस बुक में, और बहुत बेस्ट सेलर रही है ये बुक अमेज़ॉन पर। रोहित परमार जी, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो आए हैं या आज नहीं आए हैं। आए हैं तो प्लीज़ यहाँ पहुँचिए। राजीव मेनन जी मुझे दिख रहे हैं सामने, प्लीज़ एक सीट लगा दीजिए यहाँ पर। राजीव जी प्लीज़ हैव अ सीट। अभी इनकी मीना कौशल जी की अभी एक साथ 2 बुक्स पब्लिश हुई हैं हमारे पब्लिकेशन से, प्रीत पराई और डेथ इज कॉलिंग। तो इनकी बुक सर को दे दो। है उनको, वही तो मैं कह रही हूँ लेके आओ। मीना जी आप पोडियम पे जाओ। स्मिता जी एंड मीनाक्षी मैम प्लीज। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्लीज। मीना जी अब आप अपनी बुक के बारे में कुछ अपने बारे में।
मेरी दोनों बुक्स, एक डेथ इज़ कॉलिंग हॉरर कहानियों का कलेक्शन है। इसमें 15 कहानियाँ हैं, जितने भी हॉरर हम सोच सकते हैं, भूत प्रेत चुड़ैल, ये सब कुछ, सब अलग अलग तरह की हॉरर कहानियाँ हैं। संकलन है 15 कहानियों का। उसके उलट प्रीत पराई, जो कि एक विशुद्ध देहाती प्रेम उपन्यास है। इसके पात्र ऐसे हैं जो आपके साथ हमेशा रहेंगे, पढ़ने के बाद भी रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि जिसने भी इसे पढ़ा है वन गो में पढ़ा है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप ज़रूर इसे पढ़ें, और आप सब लोगों का हार्दिक आभार। मीना जी की विशेषता लेखन में दो हैं और दोनों बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक तरफ ये प्रेम पर कहानियाँ लिखती हैं और एक तरफ ये इतनी हॉरर कहानियाँ लिखती हैं कि पढ़ने वाला सोचने में लग जाता है कि ये प्रेम भी कर सकती हैं या नहीं। मीना जी, बहुत जल्दी आपको जाने की। स्मिता जी प्लीज। लास्ट ऑथर हैं हमारे एनबीटी के मंच पर, एनबीटी के ही एडिटर हैं जिनकी बुक हमने की है, द्विजेंद्र जी प्लीज़ आप आइए। इनकी बुक है 25 करियर्स इन टेक्सटाइल गारमेंट एंड फैशन। वर्मा सर प्लीज़। बड़ी बात होती है कि एनबीटी के मंच पर हम एनबीटी में स्टॉल लगाते हैं, एनबीटी के मंच पर हम अपना प्रोग्राम करते हैं और एनबीटी के एडिटर की ही बुक हमने पब्लिश की है। ये छोटी बात नहीं है। सर प्लीज़ आप। दस मिनट है हमारे पास, 15 मिनट। तो इसमें स्मिता मैम आप प्लीज़, जैसे कि आप एक नेता भी हैं, जुझारू भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, अब लेखकों के मंच पे, पाठकों के बीच आप कैसे दो शब्द देना चाहते हैं, अपने मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप सभी को जय सिया राम और भारत माता की जय। आज प्रखर एक गूंज, सबसे पहले तो मैं इस पब्लिकेशन को बहुत बहुत बधाई दूंगी। वास्तव में कल्पना जी ने जो कहा कि हमारे सपनों को साकार करती हैं, ऐसे ये पब्लिकेशन है, मैं इसको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। एक बारी जोरदार तालियां आप सुरेंद्र जी और नीलू जी के लिए जरूर बजाएं। मैं सम्मानित मंच को नमन करती हूँ। केसी वर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैडम मीनाक्षी जी हैं और हमारे सभी लेखकगण, प्रोफेसर साहब हैं, और अभी सभी ने अपना, वशिष्ठ जी हैं, कल्पना जी हैं, सबसे पहले जिन्होंने इतनी अच्छी पुस्तक लिखी। वास्तव में आज के परिवेश में अगर हमको, जो हमारा आज का यूथ है, अगर कुछ सीखने की आवश्यकता है तो मैं सर को बहुत बहुत बधाई दूंगी। इतनी अच्छी पुस्तक उन्होंने लिखी है। मैं चाहूँगी कि आप सभी इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें, और जो विचार इन्होंने अपने एक व्यक्तिगत रूप में उस पुस्तक में उतारे हैं, आप सभी उसको ज़रूर देखें। और मैं सभी लेखकों को बहुत बहुत बधाई दूंगी जिन्होंने इतने सुंदर अपने पुस्तकों को यहाँ पर प्रकाशित करवाया है। भगवानों के रहस्य, मैं वशिष्ठ जी की सोच को वास्तव में बधाई दूंगी कि किस प्रकार हम सभी सोचते हैं कि वास्तव में भगवान क्या है, आज तक कोई समझ नहीं पाया है, आदि हैं, अनंत हैं। तो ज़रूर इस पुस्तक को पढ़िएगा जो इन्होंने
किस प्रकार अपनी सोच को इसमें उतारा है। मैं सभी लेखकों को बहुत बहुत बधाई दूंगी और मुझे यहाँ पर बुलाया, इसके लिए मैं प्रखर एक गूंज को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी की उपस्थिति को भी नमन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच स्मिता जी। वर्मा सर जी प्लीज़ आप पोडियम पे आइए। और नो सर, यू कैन नॉट टेक 1 मिनट ओनली। वर्मा जी सर के लिए मैं बताऊंगी कि इन्होंने कोरोना टाइम में, जो लॉकडाउन का टाइम था, उस टाइम इन्होंने काफ़ी सारी स्टोरीज कलेक्ट की और उनको एक बुक के फॉर्म में निकाला, इन लॉकडाउन एंड अदर टाइम्स। तो ये उनकी बुक है। जोरदार तालियों से प्लीज़ क्लैप कीजिए इनके लिए। और उससे पहले इन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी हैं, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल उनकी एक बुक और है, स्टोरीज इन खाकी एंड अदर कलर्स। प्लीज़ क्लैप। तो सर आप अपने बारे में और कुछ हमारे ऑडियंस के लिए अच्छे अच्छे शब्द बोलिए, और उससे पहले कुछ इन बुक्स के बारे में भी आप बताइए हमें कि आपने इनके अंदर जो भी लिखा है, थोड़ा थोड़ा जो आपके बहुत दिल के करीब है, जो एक आधा कुछ आप बताना चाहें, हमारे साथ शेयर करना चाहें। Thank you so much. Good afternoon, ladies and gentlemen. Is it working? Okay. Good afternoon, everyone. For me, it has been a very pleasurable experience to be here today on this dais and be party to the launch of so many books. I congratulate all the authors and I wish their books good luck. It just shows the, I would say, variety of publications of Prakhar Gunj, that while on the one hand you have a resource book for the IB curriculum, you have horror stories, you have a guide for careers in a specialized niche of fashion designing, and of course the book by my friend Dr. Bajaj on having a look at Indian history through the Bharatiya lens. It is of course creditable to all the authors for their lovely works, but I think it's also creditable to Prakhar Gunj for having brought out these books and having brought them out so well. I personally wonder how Niluji finds so much energy to take care of the publication work. There was another function of hers that I attended in which the variety of authors and the variety of books was simply mind-boggling. So, while congratulating all the authors, I also thank Prakhar Gunj for being such a nice and accessible publishing house, and I wish you all the luck. I wish you greater success. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. मीनाक्षी वर्मा मैम। मीनाक्षी वर्मा मैम जीवन संगनी है सर केसी वर्मा जी की, और अपने आप में एक लंबे समय तक टीचर रही हैं, और इन्होंने मैथ्स पे बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स लिखी हैं जो स्कूलों में लगी हुई हैं। तो मीनाक्षी मैम, मैं आपसे चाहूँगी कि थोड़ा सा आप अपनी बुक्स के बारे में, अपने बारे में 2 शब्द हमारे साथ साझा करिए। नमस्कार सब लोगों को, और धन्यवाद भी कि आप लोग अपना टाइम निकाल के ये बुक लॉन्च सारी में आए। पर हाँ, अब आज यहाँ पे आके मुझे एक प्रेरणा मिली है कि हाँ, मुझे भी एक टेक्स्ट बुक ऐसी लिखनी चाहिए जो मैं प्रखर गूंज से छपवाऊँ। थैंक यू मैम। थैंक यू। स्पेशली कल्पना श्रीवास्तव जी की किताब देख के कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया हिंदी की बुक इंटरनेशनल बैकलॉरिएट सिस्टम के लिए लिखी है, जो कि सराहनीय है। और कमलेश बजाज जी भाई हमारे साथ पढ़ते थे, या मैं उनके साथ पढ़ती थी क्योंकि वो ब्राइटेस्ट थे क्लास में, फिज़िक्स और फिर कंप्यूटर साइंस में, और काफ़ी बड़ी बड़ी जगह उन्होंने काम किया है।
आई थिंक टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में भी काम किया है और अभी भी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो थैंक यू मुझे सुनने के लिए भी। नहीं मैम, आपको सुनना हमारे लिए ऑनर की बात है। इतना टैलेंट है आप में, मैंने खुद आपकी बुक्स देखी हैं, कितना कुछ आपने लिखा है, बहुत बड़ी बात है। कल्पना जी तब से मुझे इशारा कर रही हैं कुछ कहने के लिए, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आप पोडियम पे आके बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप। मुझे लगता है कि जो यहाँ पर हम सभी बैठे हुए हैं, हम एक इमारत की तरह हैं, लेकिन नींव जो है वो आप हो, क्योंकि बिना नींव के मुझे लगता है कि प्रखर गूंज एक नींव की तरह है, जहाँ पे हम लोग को अपने आयाम, अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका देती है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रकाशन बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है, और सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक लोगों से जुड़ना, उसके साथ काम करना और आत्मीयता मिलना आसान नहीं होता है। तो मुझे पर्सनली, मैं मुंबई से हूँ, तो मुझे मैंने काफ़ी लोगों से बात किया, लेकिन जब मुझे नीलू मैम से बात किया तो मुझे लगता है मेरी लेखनी को जो ऊंचा आसमान आप ही दे सकती हैं। तो मैं आपसे जुड़ी और ये सिलसिला बनता गया, कारवां बनता गया, और मुझे लगता है कि मैं आज दिस इज़ ओनली टोकन ऑफ लव कि मैं आपके लिए एक छोटी सी भेंट मुंबई से लेकर के आई हूँ, हम सभी की तरफ से, नॉट इंक्लूडेड मी, सभी की तरफ से। तो प्लीज़ आप उसे स्वीकार करिए आज। और प्रखर गूंज के लिए मैंने जस्ट अभी एक लिखा हुआ है छोटा सा ऐसे ही, प्रखर गूंज की गूंज हो इतनी प्रखर, जिससे सारा जहां हो मुखर। प्रखर गूंज की चले ऐसी लहर कि वो सब हम सब के दिलों में कर जाए घर, हम सब के दिलों में कर जाए घर। थैंक यू सो मच कल्पना जी, थैंक यू सो मच। इतना हम लोगों पे ट्रस्ट करने के लिए, पब्लिकेशन पे ट्रस्ट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन कल्पना जी, ये मंच हमें आप लोगों को ऑनर करने का है। आप और आखिर में मैं सुरेंद्र सिन्हा जी से, अपने पति देव जी से रिक्वेस्ट करूंगी, उनका बहुत सपोर्ट है और उनका सपोर्ट है तभी हम लोग यहाँ पर हैं, नहीं तो लेडीज़ बहुत आगे बढ़ती हैं, सब कुछ बढ़ती हैं, लेकिन फैमिली के सपोर्ट के बिना कहीं ना कहीं अधूरी भी रह जाती हैं। तो उनको आप आके अगर हमारा थोड़ा हौसला अफजाई करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार सभी को। आप सब देख ही रहे हैं मैडम को, खूब मेहनत करती हैं, दिन रात करती हैं और उसका फल मिल ही रहा है। और आप सब लोगों का आशीर्वाद भी हमेशा मिलता रहे और इसी तरह से प्रखर गूंज आगे चलता रहे। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, ऑथर्स के लिए यहाँ पे कोशिश करते हैं एक प्रोग्राम प्रोग्राम किया जाए जहाँ उनकी किताबों को हम एक एक्सपोजर दें। और इस सिलसिले में अगर हमारे ऑथर्स दूर दूर से, लोकल ऑथर्स जो दिल्ली में रहते हैं उनके लिए आना सुविधाजनक है, लेकिन जैसे कल्पना जी सीधा मुंबई से आ रही हैं, बहुत सारे ऑथर्स हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, मुझे हैरानी होती है। राजीव जी बैठे हैं चेन्नई से, ऑथर सीधा ऑफिस में आ रहे हैं, ऑफिस में काम कराते हैं पर्सनली आके, और रेगुलर विजिट पे कभी चेन्नई, कभी रोहिणी, कभी चेन्नई, कभी रोहिणी। तो अच्छा लगता है, आप सबका इतना प्यार है हम लोगों के साथ में। थैंक यू ऑल। और मेरे साथ मेरी सब एडिटर हैं आरती प्रियदर्शनी जी, इनको मैं पीछे नहीं छोड़ सकती, तो इनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ये भी लास्ट है प्रोग्राम का, 2 शब्द दें और इस प्रोग्राम को फिर हम विराम दें। जब आप, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि नीलू जी हमेशा मुझे अपने साथ रखती हैं
मतलब वो कहती हैं कि ना तुम मेरे आगे हो ना पीछे, बस मेरे साथ रहो और मेरे साथ हो तुम। तो जब हम प्रखर गुंज पब्लिकेशन के साथ जब मैं 2019 से जुड़ी हूँ, तब से लेकर के मतलब हम लोग ने सोचा नहीं था कि यहाँ तक पहुँच जाएंगे, लेकिन हाँ एक सपना था और वो सपना आज लग रहा है कि साकार होता हुआ दिख रहा है। हम दोनों ने साथ मिलकर एक सपना देखा था कि अपने प्रखर गुंज पब्लिकेशन को हम आगे बढ़ाएंगे और भी अभी तो और भी आगे बढ़ना है। लेकिन हाँ ये आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग यहाँ आए, हमारे बहुत सारे लेखकगण इतने मतलब हमारे मंच पर आकर के और ये अपनी किताबें प्रकाशित करवा रहे हैं और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और इस सब के लिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं नीलू सिन्हा जी को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे अपने साथ लेकर हमेशा चला और मुझे भी प्रोत्साहित किया। नहीं तो मैं लेखिका थी एक, जो बचपन से ही मैं लिखती थी, कई सारी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करती, मतलब मेरी रचनाएं प्रकाशित होती रहती थी, मैं हमेशा लिखती थी। लेकिन हाँ ये एक पब्लिकेशन को संभालने का जो अनुभव है ऐसा मेरा कुछ नहीं था, लेकिन प्रखर गुंज पब्लिकेशन के साथ जुड़ने के बाद मेरा ये अनुभव तो मतलब वो है, साथ में हम लोगों का हुआ और आज मतलब इतना आगे जो हम लोग बढ़ रहे हैं और आगे भी ये कोशिश है कि अभी ये कुछ नहीं है, अभी इससे भी और आगे जाना है और वहाँ भी हम दोनों साथ ही रहेंगे हमेशा। बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आज का हमारा प्रोग्राम बिल्कुल समय पे ख़त्म होता है, 2 मिनट भी आगे नहीं लिया हमने। थैंक यू आप सबका यहाँ रहने के लिए, हमें सुनने के लिए, और हमारे सभी गेस्ट का थैंक यू, सब यहाँ आए, हमें समय दिया। स्मिता मैम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बिजी शेड्यूल